gonna share you my NEET preparation journey till now, an honest one. Okay, so let's start from the starting. I secured 87% in my 10th boards and I was the last one. I didn't know what I wanted to do in my life. I mean, I used to see people around me saying, even during board exams, people used to say, आज के बाद ये paper नहीं लिखेंगे, ये मेरा आखिरी paper होगा इस subject का. At that time, I used to feel everyone is so. I mean, everyone knows what they want to do, and I was stuck. And I used to be like, I don't even know. वो बेंच पे बैठी हुई आजू बाजू के दोस्तों को बात करते हुए सुना कि what they're gonna do in their lives and them knowing what they want to do, and here I am, I don't have any idea what do I want to do. That feeling was suck. That was the story during boards. After boards, I started researching about what I want to do, and I got to know my school was providing a integrated batch for JEE NEET, and at that time I was like, no way, I don't want to give, I want to explore other things. So I started searching, and they were even starting a batch for ACCA. Now what is ACCA? It's like a chartered accountant, but at international level you can go abroad and stuffs like that. So I was interested in that, and I insisted my parents to check out with our counselor, and he was like, yeah, you should take it, and told everything about it, good stuffs, and like all compliments and all. But my father wanted me to take science till 12th at least, and he was like, he insisted me, he didn't force me, but he was like, I want my children to do science, because I saw pros and cons of ACCA too. So I was like, no, I seriously don't know. I mean, my parents insisted me on taking PCMB. Yes, everyone says that it is the worst decision, dude. Well, being honest, I don't know yet, because my school, where we have decided, like, my father really trusted my school, because I have been studying here since HKG higher, what do you call, like the I'm not sure what it is called, उसे अभी क्या बोलते हैं I don't know, but क्योंकि थोड़े people बोलते हैं कि it's changed, but yeah, HKG, if you can understand, a grade before first standard. So मैं तब से मेरे स्कूल में थी, तो मेरे parents were like कि they trust my school a lot, so they wanted me to continue there. So that's how I joined my school's integrated batch, in which they were teaching for JEE. So talking about my counselor, I'm just sharing my experience, and I want you to not fall into that trap. So what happened is, as I said, I was into ACCA. So we met the counselor, and he was like, हाँ मुझे पता है ये लड़की में कैपेबिलिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छा करेगी ACCA के फील्ड में, बिकॉज हमारे स्कूल ने तभी न्यू कॉमर्स का निकाला था, मतलब सी ICSE बोर्ड का हायर, मतलब 11th-12th को ISC बोलते हैं, तो उन ISC का कॉमर्स हमारे स्कूल ने निकाला था, न्यू लॉन्च किया था, आई गेस 2-3 साल पहले. तो उसमें ज्वाइन करवाने के लिए सर ने मुझे ऐसे इंसिस्ट किया कि इस लड़की में कैपेबिलिटीज़ हैं टू यू नो गेट इनटू ACCA वाला बैकग्राउंड, एंड वो बहुत ही ऐसे इंसिस्ट करते थे तभी कि ज्वाइन, एंड आई वॉज वेरी नाइव, मतलब आई वॉज लाइक, ओ वाओ, मेरे अंदर है वो सब, एंड आई यूज्ड टू गेट हैप्पी ऑन दैट. बट मेरे पेरेंट्स न्यू इट कि ही वॉज जस्ट सेइंग दैट टू इंक्रीज द बैच साइज, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन हो रहे होते, मतलब सो ही इज़ टू सपोर्ट इट एंड इंसिस्ट वेरी मच कि ये ही बेस्ट है उसके लिए ऐसे. एंड मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली पता चल गया कि ही इज़ ट्राइंग टू जस्ट सेल अस, लाइक एज if you can understand what I'm trying to say, it's kind of hard to explain, but yeah, ऐसा हुआ. एंड देन फिर उसके बाद बहुत खुश हो गई कि oh my god, I'm made for it stuff. बट फिर उसके बाद में जब हम पापा मतलब हमारे बीच में डिस्कशन हुआ, एंड हमने फिक्स किया क्या हमें मेरी स्कूल से 11th-12th करना है इन दैट इंटीग्रेटेड बैच जो उनने न्यू लॉन्च किया था. तो पहले तो उनने बोला कि, पहले सर ने बोला जब हम लोग उनसे बात करते थे नीट वगैरह के बारे में, तब वो बोलते थे इससे नहीं हो पाएगा, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, हाउ कैन यू डिसाइड लाइक दैट. बट फिर भी तभी मैंने लाइटली लिया, आई जस्ट इग्नोर्ड दैट. आई गेस आई एम स्पीकिंग टू लाउड, बट आई फियर कि अगर मैं ज़ोर से नहीं बोलूँगी तो आवाज़ नहीं पहुँचेगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी माइक और समथिंग. बट एनीवेज, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, तभी जब हम बात करते थे एनी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट, तभी वो सर बोलते थे कि नहीं ये नहीं कर पाएगी, एंड तभी मैं इग्नोर करती थी क्योंकि आई वाज लाइक मुझे करना भी नहीं है, ACCA में आई वाज इंटरेस्टेड. बट फिर उसके बाद जब उनसे हमने बोला कि हमें नीट में करवाना है नॉर्मल साइंस वगैरह का देखिए आप, तो तभी ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है इंटीग्रेटेड बैच में घुसवाने की कोशिश की. बट हमने तब ही वाज लाइक कि 7-8, तो उनने सुपर 40 करके ऐसे बैच बनाया था जिसमें JEE के बच्चे एक साथ बैठेंगे और नीट के बच्चे एक साथ बैठेंगे, दोनों का मिला के. वी डिडंट हैड एनी आइडियाज, तो सैट एग्जामिनेशन या उनने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दी, एंड हमारे थोड़े स्कूल के बच्चे भी थे जिनने दी थी. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा रेशियो कम था, तो उनने सुपर 40 की बैच बनाई थी. एंड आई वाज लाइक सच बोलूँ तो मेरा फाउंडेशन उतना अच्छा नहीं है, एंड
मैं दे भी पाऊँगी कि नहीं, सुपर 40 में बहुत होशियार बच्चे होंगे, स्टफ्स लाइक दैट। या आई डाउटेड माई सेल्फ एंड ऑब्वियसली कौन नहीं करेगा उस टाइम पे, बिकॉज पूरे स्कूल में से 40 बच्चे सिर्फ। एंड बिलीव मी, व्हेन आई गेव दैट एग्जाम इट वाज सो हार्ड, लाइक नॉट इवन लाइक नीट से भी ऐसे नीट मतलब नीट JEE के लेवल का ऑब्वियसली नहीं था वो, बिकॉज 10th पास्ट के थोड़े टॉपिक्स से रिलेटेड था, उनने पोर्शन वगैरह दिया था। एंड वो जो एग्ज़ाम था दैट वाज लाइक ओलंपियाड से कहीं से उठा के कोई पेपर रख दिया उन्हें सामने। एंड लाइक दे डिडेंट वांटेड अस टू गिव एनी चांस कि हम स्कॉलरशिप ले। एंड सबके साथ ही सेम एक्सपीरियंस हुआ है कि वो सबको एक ही लाइन बोलते थे कि अच्छा स्कोर किया है बट उतना नहीं कि स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड वी ऑब्वियसली अंडरस्टूड दैट रैप, बट फिर वी लाइक छोड़ो, इतने सालों तक दे ही रहे थे पूरी फीस, तो अभी भी दे देंगे। पता चला कि जो वो बोल रहे थे कि ही यूज्ड टू से कि 5-7 सीट्स आर ओनली रिमेनिंग, पता चला कि 5-7 बच्चे हैं सिर्फ, सुपर 14 लिखा था एंड बस 5-7 तो बच्चे थे। एंड इट वॉज ऑब्वियसली वेरी लाइक फनी इंसिडेंट। मैं मतलब 2-3 लड़कियाँ थी जिनको मैं जानती थी, तो उनसे बात करते थे और हम लोग बोलते थे ऐसे कि कितना पागल बना रहे हैं, सबको सेम सेंटेंस झाड़ते थे कि F-SAT के बारे में, ठीक है छोड़ो, नहीं कुछ नहीं पता चलता, SAT के बारे में कि अच्छा स्कोर किया बट उतना नहीं कि स्कॉलरशिप मिल पाए, या फिर 5-7 ही बच्चे हैं, 5-7 ही सीट्स बची हैं, सबको सेम। ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक देयर बिजनेस, दैट्स देयर जॉब टू डू, कि उनको बच्चों को लाना है उनके क्लासेस में, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही बोलेंगे। ओके, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द काउंसलर एंड एडमिशन प्रोसेस का पूरा टाइम। एंड फिर उसके बाद मई में आई गेस 10-15 दिन गई होंगी मैं, क्योंकि वो पहले से ही चल रहा था। एंड या मई में चल रहा था ये सब कि आई जॉइंड इट अराउंड May 2-3 में, और फिर उसके बाद 16 मई से आई गेस छुट्टियाँ भी दे दी उन्होंने। एंड वहाँ पे लिटरली कितने बच्चे थे, लेट मी काउंट, तो 7 बच्चे थे एंड मैं 8th वाली थी, और मेरे एक दिन बाद ही लाइक मैं हाफ डे में एंटर की थी। ओके, लेट मी टेल यू दैट एक्सपीरियंस टू। तो क्या हुआ था ना कि सर वाज लाइक एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, जल्दी पे करो, जल्दी पे करो। एंड सो द फीस वर लाइक 50 में देने थे 4 बार में, तो एक 50 दे दिया था एंड लगेज फिर हम लोग जा सकते थे क्लास अटेंड करने के लिए। मीन्स मैं हाफ डे में आई थी और उसमें से भी लगेज मेरे को क्लास में बैठना था। सो दैट वाज लाइक अ वियर्ड थिंग दैट हैपेंड, वियर्ड एक्सपीरियंस, आई मीन न्यू समथिंग न्यू। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे क्लास में एंट्री लेनी पड़ेगी हाफ डे में। बीच में सर सिखा रहे थे टॉपिक, विच टॉपिक वॉज दैट रिमेंबर, सेट्स या फिर फंक्शन में से एक था। तो मैं और गई, मैंने बोला मैं कम इन सर, एंड पूरी क्लास मेरे को दिख रही है कौन टपकी और फिर उसके बाद आई वाज देयर, सर वाज लाइक या कम इन, और मैं आके शांति से बुक खोली और बैठ गई पेन लिखने, एक कॉर्नर वाली बेंच पकड़ ली। और फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ समझ में आ रहा है कुछ कुछ जो लिखा है बोर्ड पे। और वाज लाइक कुछ भी डाउट रहा तो पूछ लेना। एंड आई वाज लाइक फिर उसके बाद और मैं पूरे टाइम ऐसे आँख खुली सबको इधर उधर देखने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक आँख खुली इन द सेंस ऑब्वियसली हर किसी की आँख खुली रहती है, बट I was like trying to like मेरी eyes से ही पता चल रहा था I was so lost, but I was trying to act confident। भाई मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है, so I want to share that, but नाम रिवील नहीं करना चाहती मैं, बिकॉज अगर गलती से भी फ्रेंड्स ग्रुप में से किसी ने ये चैनल डाउनलोड मिल गया तो इट वुड बी लाइक सो awkward। As I said कि मुझे I want to share the stories about the friendship tragedy that I faced, तो हम लोग नाम देंगे, वी आर गोना डिसाइड अ निकनेम। टोटल में मैक्स स्ट्रेंथ हमारी क्लास की कितनी हुई थी इवन एट द एंड, इट वाज लाइक स्टार्टिंग में तो हम यही 8-9 बच्चे थे, एंड फिर उसके बाद आफ्टर में लाइक जून से धीरे धीरे और बच्चे भी ज्वाइन किए एंड द क्लास स्ट्रेंथ इंक्रीज टू 18, बट उसमें से 3 बच्चों ने नॉर्मल साइंस ले लिया, बिकॉज आई डोंट नो वाई, मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा या उनको नहीं करना होगा, तो उन लोगों ने नॉर्मल साइंस ले लिया बिकॉज उन्हें पे कर दिया था। और एक लड़की तो एंड उसके बाद भी स्कूल ऑब्वियसली रिफंड नहीं करेगा, एक बार पे किया है तो स्कूल ने ऑफर दिया कि नॉर्मल साइंस में जा सकते हो, लेकिन उसने छोड़ ही दी स्कूल और 50,000 गए हवा में, ऐसे था ना। दिस इज हाउ आवर क्लास स्ट्रेंथ गॉट टू 50। This video was getting too long, so I'll update you in the second part. Bye.